Namaste. Dear student, in previous parts, we have discussed addition of vectors, subtraction of vectors. In today's period, we are going to start the product of vectors. Using different concept, we are having two types of product. First one, it is called as a dot product or it is called as a scalar product. It gives us a number as answer after getting the product of the two vectors. And second type of product of two vectors gives us the vector as answer, and that product we are calling as a vector product or cross product. In starting, we are discussing the first type of product, that is called as a dot or scalar triple product. Before seeing scalar product, we want to use what is the angle between vectors. So if I consider A bar as a vector, B bar as a vector, and when these two vectors is having their initial points when coincide, then there will be one structure which we call as an angle between A bar and B bar. So the vector A bar, vector B bar, when they are having or they intersect, specifically when they start from a single point, that initial point, at initial point we will have the angle between these two vectors, and this angle can be zero when the vectors are collinear, means a B bar is coinciding on A bar in same direction. I am calling in same direction. Then the angle between two vectors, that is A bar and B bar, when they are on the same line with same direction, when A bar and B bar on the same line with same direction, then we can say their angle is nothing but 0 degree. Okay, very simple concept. Geometrically it can be observed easily. But when A bar and B bar having opposite direction, being collinear, when they are in opposite direction, then we can say the angle between these two vectors is maximum, is the largest angle in that case, and we consider that angle as a 180 degree or pi radian. It can be considered as a 180. So when two vectors are having the initial point, then we are having their factor, that is the angle between these two vectors can be determined, and using these two situations, it can be either 0 or 180 when they are collinear in same or opposite direction, but the range of the angle between two vectors lies in this angle can be 0, greater than 0, or up to 180. Up to 180 means less than 180 as well as maximum up to 180 pi radian. So this is the range of this angle between two vectors, and this can be usually in the coming definition, that is dot, or that is called as a scalar product. So what is the actual definition of scalar product of dot product? If I consider the first vector, that is A bar, and second vector, that is B bar, and if they are having angle between them as a theta, then we know that how to get magnitude of a vector by using its ijk component under root with their square. So magnitude concept is with us. So the magnitude of this A bar, magnitude of B bar can be evaluated by knowing it in component form. So this magnitude we are using while defining the dot product or scalar product. So definition of scalar product starts from this. The scalar product of two non-zero vectors, A bar and B bar, denoted by, as we are seeing dot, so we are using dot in between the two vectors. The vectors we have taken product is A bar and B bar, and in between them we are using dot, as the name itself we are considering dot product. So dot in between A bar and B bar, this is the notation for dot or scalar product. So A bar dot B bar, this is the notation, and it is evaluated or defined by using the formula, and is defined as A bar dot B bar is equal to, its value is magnitude of A bar into magnitude of B bar into cos of angle between them, that is theta. So in the right hand side you can observe that mod of A bar is a number, mod of B bar is also magnitude length of that vector B bar, so it is also a number, and cos of theta,
So cos theta can be 0, it can be 1, it is 1 by 2, root 3 by 2, or the number between -1 to 1. cos की रेंज क्या है? -1 सबसे कम वैल्यू है और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या cos की क्या होती है? मैक्सिमम होती है 1. तो ये cos की रेंज है, उसमें से उसकी वैल्यू मिलती है. तो ये तीनों वैल्यूज है, ये पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू है, ये नंबर है. इसलिए तीनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एक नंबर आता है. इसीलिए आप कहते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये स्केलर प्रोडक्ट है. स्केलर क्यों है? क्योंकि वो एक नंबर आता है, रियल नंबर उसके आंसर का वैल्यू होता है, इसलिए उसको स्केलर कहते हैं. और इसी तरह से आप अगर उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार into mod of b bar into cos of theta. This is the formula, basic formula to get dot between two vectors, where theta is the angle between a bar and b bar, and we already said that dot is a real number. Dot product of two vector is a real number. It is a scalar number. It is a number as an answer, not a vector quantity. So this is the simple definition of the dot product or scalar product. Now, using this definition, we want to observe some information by using this definition. So what are the observations? What are the notes we are getting by using this definition, by using different values of I, that is a bar and b bar, different values of the angle between the two vectors. So observation starts from this. If, as we have considered a bar and b bar as a non-zero vector, definition में non-zero vector कहा है? मान लो अगर वो जीरो होते हैं, उसमें से एक वेक्टर अगर जीरो होता है तो उस सिचुएशन में डॉट या स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या लेना है आपको? तो ए बार अगर जीरो है या फिर बी बार जीरो है तो उस केस में ये जो एंगल है बीच में दोनों के, ये डिफाइन ही नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर दो आपके पास होना चाहिए. दोनों के बीच में जो एंगल आप एग्जिस्ट करना चाहते हैं वो अगर एग्जिस्ट ही नहीं होता है, डिफाइन ही नहीं होता है, तो उस केस में मीनिंगफुल डॉट की वैल्यू नहीं मिलती. तो उस केस में डॉट की वैल्यू अज्यूम की जाती है एज अ जीरो. तो ए बार अगर जीरो है, बी बार या जीरो है, दोनों में से एक वेक्टर अगर जीरो है तो डॉट को क्या लेना है? डॉट को भी जीरो लेना है. सिमिलरली ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल के ऊपर है. आपने जो वेक्टर आप दो वेक्टर्स लिए हैं उसके बीच में अगर एंगल जीरो है, जैसे ये सिचुएशन है, यहाँ ए बार और बी बार सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो होगा. अगर दोनों के बीच में जीरो है तो कॉस आपका, अगर यहाँ जो आप एंगल देते हैं कॉस को, डेफिनेशन में यहाँ थीटा की वैल्यू अप्लाई करनी पड़ती है. तो थीटा अगर जीरो है तो क्या होगा? ए बार और बी बार निकालते समय मॉड ऑफ ए बार होगा, मॉड ऑफ बी बार होगा, कॉस होगा जीरो. और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? याद में रखो, कॉस जीरो ये सबसे ज्यादा वैल्यू लेता है 1. भले एंगल जीरो है लेकिन उसकी वैल्यू वो जीरो के लिए सबसे ज्यादा है. मैक्सिमम वैल्यू उसी एंगल के लिए मिलती है जो 1 है. तो यहाँ अगर आप मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस जीरो कहते हैं तो कॉस जीरो तो कितना होता है? 1 होता है. इसलिए जब एंगल थीटा आपका जीरो होगा तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू क्या होती है? जस्ट मॉड ऑफ ए बार एंड मॉड ऑफ बी बार. तो ये आप अगर इस मॉड में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, या फिर विदाउट मॉड लेना है तो ये आप क्या स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी लिख सकते हैं, वेयर स्मॉल ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बार, स्मॉल बी is the magnitude of vector b bar. So notation for mod of a bar simply a, not a bar. Notation for mod of b bar, it is just small b, not bar on that b. So it is assumed as a length. So small a, small b. So mod of a, that is a bar dot b bar is equal to just mod of a bar into mod of b bar, or just as a into b. Similarly, when the vectors are taken सेम वेक्टर विद डॉट, सो ए बार डॉट ए बार, जैसे आपको ए बार डॉट बी बार थीटा जीरो होने के बाद क्या मिला है? मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार. आपका अगर वेक्टर ही सेम है तो जो बी है वही आपको, अगर सेकंड वेक्टर को ए लेना है तो उस केस में क्या होगा? ए बार डॉट ए बार, इस डेफिनेशन में अगर लिखना है तो क्या होगा? ए बार मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ ए बार, और यहाँ कॉस जीरो ही होगा. दो वेक्टर अगर सेम है, दोनों के बीच में एंगल जीरो ही होता है तो कॉस 0 1 होगा. तो यहाँ मिलेगा आपको मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ ए बार. इसीलिए इसको क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर. और दूसरे लैंग्वेज में कहना है तो इट इज जस्ट एज ए स्क्वायर. जब ए स्क्वायर लिखते हैं तो वहां बार नहीं होना चाहिए. ये एक इंफॉर्मेशन आपके पास वो मैग्नीट्यूड के लिए अज्यूम किया जाता है. अब आपका थीटा की जगह पे
जीरो की जगह पे अगर आपका एंगल है मैक्सिमम जिसको आप 180 कहते हैं या फिर पाई कहते हैं, तो कॉस की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। कॉस 180 के लिए क्या होता है? कॉस 180 के लिए सबसे कम होता है जो -1 है। तो कॉस पाई अगर तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर पाई है तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ बी बार। डेफिनेशन से ये दो नंबर तो फिक्स ही आते हैं, सिर्फ एंगल को आपको चेंज करना है। तो एंगल आपने अज्यूम किया है थीटा एज ए 180 और पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या है? कॉस पाई तो -1 है, तो ये कॉस पाई रिप्लेस होगा -1 से, तो राइट साइड को आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 से इफेक्ट नहीं आता मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन ये दोनों जो वैल्यू दे रहे हैं उसको निगेटिव साइन आता है। इसीलिए थीटा पाई है तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू माइनस मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। अब आपके पास दूसरा एक बीच में एक केस आ सकती है कि ना 0 है ना 180 है, दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी आ सकते हैं। जैसे आपको यहाँ ए बार वेक्टर है और दूसरा बी बार वेक्टर, दोनों के बीच में अगर 90 का स्ट्रक्चर है, when a bar is perpendicular to this b bar then angle can be considered as a 90, और cos डॉट में एज्यूम किया जाता है 90 के साथ, तो cos 90 के साथ कितना मेंटेन होता है? तो cos 90 के साथ 0 मेंटेन होता है। और ये cos कहाँ होता है? तो cos ये दोनों के साथ राइट में डेफिनेशन में यूज किया जाता है, cos विद दैट एंगल। और एंगल दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल तो कितना है? एंगल 90 है, π/2 है, और π/2 या 90 के लिए cos की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यहाँ अगर 0 है तो ये तीनों का प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उस केस में डॉट की वैल्यू क्या होती है? डॉट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो याद में कैसे रखना है? दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इस तरह से दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। और वाइस वर्सा अगर कहना है, मान लो कभी अगर एक का बी के साथ डॉट 0 आता है तो उसमें तीन अलग अलग कंडीशन आते हैं। एक तो पहला वेक्टर 0 होगा, दूसरा वेक्टर 0 होगा, या फिर दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, या फिर दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो सकते हैं। क्योंकि पहली केस भी आपने 0 वाली, लेकिन डॉट 0 उस केस में भी होता है जब दोनों में से एक वेक्टर 0 होता है। तो आपने वाइस वर्सा भी कहा है कि डॉट की वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0, सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों में से एक कोई तो भी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होगी डॉट की वैल्यू 0 लाने के लिए। अब आपके पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे स्ट्रक्चर है, ए का डॉट बी के साथ ले लो या फिर बी का ए के साथ ले लो, दोनों के भी आंसर सेम आते हैं। उस केस में डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है कि ए का डॉट दोनों वेक्टर के एडिशन के साथ अगर लिया जाता है तो डॉट ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और वेक्टर एडिशन, तो ए का डॉट बी के साथ ले सकते हैं और ए का ही डॉट सी के साथ ले सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो उसमें डॉट प्लस के ऊपर डॉट एडिशन और वेक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेफ्ट में एक ही जगह पे है लेकिन राइट में कितने जगह पे हुआ है? दो जगह पे, इसलिए डॉट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दो जगह पे आपको मिला है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होल्ड होती है डॉट प्रोडक्ट में एडिशन के ऊपर। अब आपके यम और एन हर वक्त आपके स्केलर नंबर्स होते हैं और उस केस में अगर वो ए बार बी बार के साथ यूज किए जाते हैं, मान लो ए बार के साथ 5 है और बी बार के साथ 3 है, इस तरह से ये नंबर है और दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर डॉट है तो नंबर का प्रोडक्ट अलग होता है और डॉट कहाँ होता है? सिर्फ वेक्टर्स में होता है। तो ए का बी के साथ ही डॉट होगा, तो दूसरे का नंबर और पहले का नंबर सेपरेट मल्टीप्लाई करो तो यम और एन का सेपरेट प्रोडक्ट होगा और वेक्टर जो आपका पहला है उसका ही डॉट दूसरे वेक्टर के साथ आप लिख सकते हैं। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर है। एग्जांपल्स में उसको यूज करना पड़ेगा। सेकंड केस कह सकते हैं वेक्टर्स में, अगर यम ए बार के साथ है और राइट साइड में आप डॉट बी के साथ लेते हैं तो यम आप पहली बार तो यम बाहर ले सकते हैं और डॉट दोनों वेक्टर के बीच में लिख सकते हैं, या फिर ए बार को आप बाहर ले सकते हैं, डॉट लिख सकते हैं और यम को आप बी बार के साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये सेटिस्फाई होता है, बैलेंस करता है। और इसमें और एक कंडीशन है कि दो वेक्टर के डॉट का मॉड ये एक तो इक्वल होगा उनके हर एक के मॉड के प्रोडक्ट के बराबर, एक तो इक्वल होगा या फिर हर एक का जो मॉड है ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो सेपरेट मॉड की क्वांटिटी एक तो उनके डॉट प्रोडक्ट के मॉड के बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ये आगे के एग्जांपल में आपको ऑब्जर्वेशन में मिल सकता है। तो इस तरह से ये 8 ऑब्जर्वेशंस, 8 नोट्स इसी डेफिनेशन का यूज करके
डॉट या स्केलर प्रोडक्ट के डेफिनेशन का यूज करके कुछ ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट वी वांट टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन two vectors in terms of dot and their product, that is mod. Now as we have discussed the dot product as mod of a bar into, that is a bar dot b bar is equal to mod of a bar mod of b bar and cos of angle between two vectors a bar and b bar. So इस फॉर्मूले से आप अगर cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये दो वेक्टर जो आपके पास अवेलेबल है इनके बीच में जो एंगल है उस एंगल को पहले कॉस के साथ वैल्यू मिलेगी। तो कॉस थीटा अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इसको इसके नीचे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ए बार डॉट बी बार के डिनोमिनेटर में आता है मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, इसके नीचे आता है। तो आपको ये कॉस थीटा की वैल्यू पहले देता है और कॉस थीटा की वैल्यू से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपका angle theta between two non-zero vectors a bar and b bar is given by cos theta is equal to, तो इस फॉर्मूले से ये दो वेक्टर दो वैल्यूज अगर इसके नीचे ट्रांसफर करते हैं तो आपका ये जो फॉर्मूला है cos थीटा का इस तरह से टर्न हो जाता है। cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो ऊपर आपको डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू यूज करनी है और नीचे दोनों वेक्टर के मॉड की वैल्यू यूज करनी है मल्टीप्लीकेशन में। और ये मैक्सिमम एंगल कहां से कहां तक दे सकता है, सबसे छोटा एंगल 0 और मैक्सिमम एंगल दोनों वेक्टर के बीच में 180 तक उसकी वैल्यू मेंटेन हो सकती है। तो इस तरह से इस cos थीटा से आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, आपको मालूम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपको मालूम है। आप अगर इस फॉर्मूले से डायरेक्ट थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो cos को अगर राइट में ट्रांसफर करते तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो cos इनवर्स ऑफ ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ बी बार। तो इस फॉर्मूले से आप थीटा दो वेक्टर के बीच में जो एग्जिस्ट होगा उसकी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन से क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल के हिसाब से आपके पास ऑब्जर्वेशन है। अगर दो वेक्टर ए बार और बी बार के बीच में जो एंगल है वो अगर 0 से बड़ा और 90 से कम है, 0 से बड़ा है और 90 से कम है, तो इस रेंज में 0 या 0 से बड़ा और 90 से कम है, तो इस रेंज के लिए ये जो एंगल आप फाइंड करना चाहते हैं वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या फिर उसकी वैल्यू। तो इस रेंज के लिए एंगल 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा 90 से छोटा अगर एंगल है तो cos थीटा की वैल्यू आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को टारगेट करें। cos थीटा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो पॉजिटिव मेंटेन करता है, क्योंकि ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार ये सभी वैल्यूज आपको पॉजिटिव मिलेंगे, इसलिए ये रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव मेंटेन होती है। तो cos थीटा आपको पॉजिटिव मेंटेन होता है जब आपके वेक्टर की एंगल के बीच में जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बढ़कर 90 तक है। आपने ऑलरेडी कहा है कि अगर वेक्टर के बीच में एंगल 90 है या π/2 है तो cos थीटा डायरेक्ट आप कह सकते हैं cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है। तो इस सिचुएशन में दो वेक्टर के बीच में ये cos थीटा 0 होगा, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। तो इस तरह से ये दोनों साइड से आप कह सकते हैं। अगर 90 से बड़ा है और 180 तक है तो उस केस में cos की वैल्यू का साइन अगर चेंज करना चाहते हैं तो cos सेकंड एंगल क्वाड्रेंट के एंगल के लिए ये पाई तो 180 मींस निगेटिव एक्स एक्सिस है, वो एंगल छोड़ के बाकी के सभी एंगल जो है 90 से बड़े और 180 से छोटे एंगल है तो उस एंगल को आप सेकंड क्वाड्रेंट में है ऐसा कह सकते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए cos की वैल्यू निगेटिव होती है। तो cos आपको निगेटिव मेंटेन होता है जब एंगल क्या होगा, एक्यूस एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच में। अब आपके पास ये इस फॉर्मूले से तीन ऑब्जर्वेशन है, साथ में आईजे के कहां से आपने तैयार किए थे, ये आईजे के तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में से पास होने वाले यूनिट वेक्टर थे। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप है। अब ये तीनों एक्सिस के बीच में तो 90 का स्ट्रक्चर है, तो आई का जे के साथ 90 का स्ट्रक्चर है, जे का के साथ 90 का स्ट्रक्चर है, के का आई के साथ 90 का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से ये तीन वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से पास होने वाले यूनिट वेक्टर्स को आपने डिनोट किया था। तो ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, दोनों के अगर लेते हैं तो उनके बीच में एंगल भी आप फाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आईजे के जो वेक्टर्स है जिनको आप यूनिट वेक्टर्स कह सकते हैं, कंपोनेंट वेक्टर कह सकते हैं, तो ये आई के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट देते हैं, जैसे आपने यहाँ कहा था
कि ए का ही ए के साथ अगर आप मॉड डॉट लेते हैं, ए का ही ए के साथ डॉट लेते हैं तो क्या होता है, ए के मॉड का स्क्वायर होता है। और वो मॉड अगर आपका 1 आता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है। इसलिए आई का डॉट आई के साथ लेते हैं तो मॉड ऑफ आई का स्क्वायर, और मॉड आई क्या होता है, आई तो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। जे का जे के साथ डॉट लेते हैं तो 1 आता है, के का के साथ डॉट लेते हैं तो 1 आता है। तो यूनिट वेक्टर का खुद के साथ, याद में रखो, यूनिट वेक्टर का खुद के साथ अगर डॉट लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन एक्स एक्सिस में से पास होने वाला यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर के साथ अगर डॉट में लेते हैं तो उसके आंसर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि आई और जे दोनों एक दूसरे को 90 में है, 90 में है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आई का जे के साथ डॉट लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, दोनों वेक्टर का अगर आप डॉट लेते हैं तो डॉट की डेफिनेशन क्या कहती है, आई कैप और जे कैप का डॉट लेते हैं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब आई और जे के बीच में कितना एंगल है, वो तो एक्स और वाई एक्सिस में से पास होने वाले दो यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच में तो वही एंगल होगा जो एक्स और वाई के बीच में, वो तो 90 है। और कॉस को 90 देने के बाद ये कितना मेंटेन करता है, ये पूरा 0 ही मेंटेन होता है। तो इसीलिए आई का जे के साथ अगर आप डॉट लेते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। उसी तरह से जे का के साथ डॉट लेते हैं तो 0 होगा, के का आई के साथ अगर डॉट लेते हैं तो उसी तरह से 0 होगा। ये ऑर्डर चेंज करने के बाद भी अगर कभी मिलते हैं तो उस केस में भी वो 0 होगा। अब आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर डॉट निकालते समय आपको मॉड भी मालूम होना चाहिए, कॉस निकालते समय वो थीटा भी मालूम होना चाहिए। ये एक रास्ता है डॉट निकालने के लिए, और आपके पास एक दूसरा रास्ता मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल के हिसाब से कि अगर वेक्टर आपके ए बार और बी बार कॉम्पोनेंट फॉर्म में है, इसका मतलब आई जे का यूज करके उसको एक्सप्रेस किया गया है। ए बार इज इक्वल टू क्या है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, ओके। और बी बार की वैल्यू क्या है, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप प्लस में है। और दोनों का जब डॉट लेते हैं तो डॉट की डेफिनेशन आपको यहाँ दो वेक्टर का डॉट लेना है, और दो वेक्टर का डॉट लेते समय वेक्टर के साथ अगर कुछ स्केलर्स नंबर्स आते हैं तो वो पहले लेना है। जैसे आपको इस A1 आई कैप का या तीनों के साथ प्रोडक्ट लेना है, डॉट डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो A1 आई कैप का B1 आई कैप के साथ अगर डॉट लेते हैं तो A1 और B1 को साइड में लेना है, और डॉट किसका होगा, सिर्फ आई कैप का इस आई कैप के साथ, और आई कैप का आई कैप के साथ डॉट कितना होता है, 1 होता है। इसलिए इस क्वांटिटी का इस पहले क्वांटिटी के साथ अगर डॉट लेते हैं तो ये वैल्यू आती है। अब उसी क्वांटिटी का दूसरे के साथ डॉट ले लो, तो नंबर्स को साइड में यूज करेंगे। A1 और इसका है B2, इसको साइड में लेते हैं तो डॉट किसका होगा, आई कैप का डॉट इस जे कैप के साथ होता है, और आई कैप का जे कैप के साथ डॉट क्या होगा, आई कैप का जे कैप के साथ डॉट कितना होता है, दोनों के बीच में तो 90 है एंगल, और जब 90 एंगल होता है तो डॉट की वैल्यू होती है 0, और उसके साथ में जो कुछ भी आपके साथ मल्टीपल था वो भी 0 बन जाता है। तो आई का जे के साथ अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो टर्म ही 0 हो जाती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। I1 A1 आई कैप का अगर B3 के कैप के साथ डॉट लेते हैं तो इसका मतलब डॉट किसका हो रहा है, आई कैप का के कैप के साथ, और आई कैप का के कैप के साथ डॉट लेते हैं तो उस टर्म की वैल्यू भी क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो वो टर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ A1 आई कैप का तीनों के साथ प्रोडक्ट लेते समय सिर्फ एक ही मीनिंगफुल टर्म आती है जो इस पहले टर्म के साथ डॉट लेते समय आती है। तो A1 B1, A1 B1 आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप आपको कितना मिला है, 1, इसलिए उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको मिडल टर्म सेलेक्ट करना है इसका प्लस वाला, तो A2 जे कैप का तीनों के साथ डॉट लेना है। तो जे का जब आई के साथ आएगा तो टर्म 0 हो जाती है, जे का जब के साथ आता है टर्म 0 हो जाती है। लेकिन जब जे का जे के साथ डॉट आता है तो जे का जे के साथ डॉट ही आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, वही टर्म नॉन जीरो मेंटेन होती है। तो उसके साथ जो नंबर्स आते हैं वो यहाँ आपको मेंटेन करना है प्लस के साथ। तो ये A2 B2 बीच में आता है, और A1 3 का A3 के कैप का तीनों के साथ डॉट लेते हैं तो के का आई के साथ और के का जे के साथ 0 ही होगा।
सिर्फ के के साथ जब लेते हैं तो उसके कंपोनेंट क्या मिले हैं, A3 B3 और के कैप इंटू के कैप डॉट के कैप, उसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं, उसका डायरेक्ट आपने कोएफिशिएंट लिखा है। तो इस ए बार डॉट बी बार का प्रोडक्ट आप अगर लेते हैं तो इस आई कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस जे कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस के कंपोनेंट का प्रोडक्ट, इस तरह से आई के नंबर का प्रोडक्ट, जे के नंबर का प्रोडक्ट, के नंबर का प्रोडक्ट आप लेके उस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये दूसरा रास्ता है जिसमें आपको उनके मॉड की वैल्यू जरूरत नहीं है और दोनों के बीच में जो एंगल है उसकी भी जरूरत नहीं। डॉट अगर इस तरह से वेक्टर देने के बाद आप निकाल सकते हैं और इसी का ही यूज करके, कंपोनेंट फॉर्म का ही यूज करके, ये अगर फॉर्मूला आप यूज करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू फिर से आपने यूज की है, तो ए बार डॉट बी बार क्या मिला है, A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3। तो इस वैल्यू को, ऊपर के वैल्यू को अगर रिप्लेस करते हैं, ये अभी जो आपने फाइल की है ए का बी के साथ डॉट, तो क्या मेंटेन होता है, A1 इंटू B1 A2 इंटू B2 प्लस के साथ प्लस A3 इंटू B3, ये ऊपर आता है। और इस मॉड ऑफ वेक्टर अगर आपके पास ए है तो उसका मॉड कैसा निकालना, तो आईजेके के साथ में जो नंबर है उनके स्क्वायर की एडिशन का रूट, तो आपको हटाना है मॉड ऑफ ए बार। तो मॉड ऑफ ए बार हटाने के लिए क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का रूट। और मॉड ऑफ बी बार हटाने के लिए क्या आता है, मॉड ऑफ बी बार इस वेक्टर से मॉड ऑफ बी बार क्या मेंटेन होता है, इस B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो ये मॉड ऑफ ए बार है, ये मॉड ऑफ बी बार है, ये दोनों इस तरह से अगर नीचे मल्टीप्लीकेशन में यूज करते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू इस रास्ते से भी आप फाइंड कर सकते हैं। एक शॉर्ट एग्जांपल लेंगे इस आइडिया को क्लियर करने के लिए। मेरे पास अगर दो वेक्टर है, पहला वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में अगर सप्लाइड है, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा वेक्टर आपके पास अवेलेबल है दैट इज 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप या 5k कैप। तो आप पहले तो क्या फाइंड करना चाहते हैं, दो वेक्टर का डॉट लेना चाहते हैं। तो डॉट अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में है तो दो वेक्टर का डॉट इजीली लिया जा सकता है। और डॉट के लिए क्या चाहिए, डॉट के लिए अगर डायरेक्ट डेफिनेशन में यूज करता हूं तो इस आई के साथ में प्रोडक्ट लेना है। तो इस आई के साथ में कितना नंबर है 2 और इस आई के साथ में कितना नंबर है 4, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा। बीच में क्या लिखना है प्लस, जे के साथ में जो कंपोनेंट है उनका प्रोडक्ट लेना है। तो पहले जे के साथ में 3 है, दूसरे जे के साथ में है 2, बाद में प्लस लेना है, बाद में प्लस लेना है। और के साथ में, के साथ में जो नंबर है उनका आपको प्रोडक्ट लेना है। तो पहले के साथ में 4 और दूसरे के साथ में है -5। अब ये सिंपल कैलकुलेशन करना है। इस कैलकुलेशन से क्या होगा, ये होगा 8, ये होगा +6 और ये होता है -20। तो ये दोनों का एडिशन करके 14 - 20, तो ये गिव्स अस -6। तो ए बार डॉट बी बार without knowing the angle between the two vectors, we can get their dot product. So using the component form. Now if I want to get the angle between these two vectors, then I am requiring mod of this a bar, mod of b bar. If I find the value of mod of b bar, what will be the value of mod of a bar? इस आईजेके के साथ में जो नंबर है उनके स्क्वायर की एडिशन का रूट निकालना है। तो उनको पहले स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो ये मिलता है 20 + 9 दैट इज √29। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको एज इट इज रखो। मॉड ऑफ बी बार की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर उसी तरह से आईजेके के साथ में जो नंबर है उनके स्क्वायर की एडिशन का रूट। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये आगे जाके क्या मिलेगा, 4 का आता है 16, 2 का होगा 4 और माइनस का भी पॉजिटिव होता है, 5 का 25 होता है, तो ये होगा 25। तो ये दोनों मिला के 20 और ये 25, तो ये होता है 45। तो इस तरह से ये √45 मॉड ऑफ ए बार है। अब आपके पास यहाँ जो चाहिए, इसको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, A1 B1 A2 B2 A3 B3 या फिर
आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या कहता है उसको यूज करेंगे। दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है तो ये तीन इंफॉर्मेशन आप फाइंड कर सकते हैं, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो अगर थीटा है तो थीटा की वैल्यू पहले कॉस के साथ फाइंड की जाती है, बाद में वो थीटा सी कर सकते हैं। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ बी बार। अब आपके पास ये तीनों डाटा अवेलेबल है, दोनों है -6, वो एज इट इज यूज करो। मॉड ऑफ बी बार की वैल्यू क्या मिली है आपको, √29। मल्टीप्लीकेशन में मॉड ऑफ बी बार की वैल्यू क्या मिली है, √45। चाहे आप ऐसा भी रख सकते हैं। अब यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन है, कॉस की वैल्यू जब माइनस साइन लेती है तो आपको एक अंदाज आ सकता है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट का है। कॉस नेगेटिव कब होता है, तो नेगेटिव होने के लिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो एंगल 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। तो इस तरह से 90 से बड़ा और 180 से छोटा वो एंगल हो सकता है। आप अगर यहाँ से कॉस थीटा से थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ये परफेक्ट नंबर नहीं निकाल सकते, लेकिन ये आंसर इसी तरह से अगर रख सकते हैं तो इसको भी उसकी वेटेज मिलता है, इसको आगे जाके एक्सपांड करने की